So the first question for today is related to section number 56, that is the doctrine of frustration. The question is, the case which was related to the practical impossibility in reference to 56 of the contract is Robinson versus Davison, Taylor versus Caldwell, Krill versus Henry, और all of the above. Practical impossibility से कौन सा केस जो है वो रिलेट करता है? Yes. Which of the following cases related with the concept of practical impossibility? Okay, so I'm getting the answers from you people. That is option number C. Very good. Option number C, Krill versus Henry के केस की बात करता है. Krill versus Henry का जो केस था, that is related with the practical impossibility, and ultimately because of the practical impossibility, the contract becomes void. ठीक है, very good. Coming to the next one. ठीक है, अगला सवाल है, a contingent contract. Contingency is a subject matter of a contract, collateral to the main purpose of the contract, main purpose of the contract, or either A or C. Contingent contract में contingency is collateral to the main purpose of the contract, subject matter of the contract, main purpose of the contract, or either A or C. सोच समझ के देखो. पहले तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के पूरे टॉपिक को अगर आप समझते हैं, ओनली देन यू विल एबल टू गिव मी द राइट आंसर. कर सकते हैं बी आंसर इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द कैंडिडेट्स? यस, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंटिजेंसी इज, देखो जहां तक कंटिजेंसी की बात है, द कंटिजेंसी is collateral to the main purpose of the contract. क्योंकि अगर आप लोगों को explanation दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है. So as far as the explanation is concerned, it is mentioned that the enforceability of the contingent contract depends upon the contingency. The contingency is not the subject matter of the contract. ठीक है. Contingency is not the subject matter, rather it is collateral to the main purpose of the contract. जैसे मान लो मिस्टर ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया है that I will pay you ₹5,000 if rain comes today. ठीक है. if rain comes today, so क्या हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, that is the payment of ₹5,000, ये कंटिंजेंसी है या रेन होना कंटिंजेंसी है? Obviously the rain is the contingency, so the contingency is collateral to the main purpose of the contract. अब जैसे इसमें ये भी हो सकता था, मान लो ए बी को कहता है that I will marry you if the rain comes today. So marriage is not the contingency, rather the contingency is a collateral thing. ठीक है. तो यहाँ पे the option should be option number B, that is contingency is always collateral to the main purpose of the contract. Very good. अगले सवाल पे आते हैं. Yeah, the question is, a contract for the delivery of certain documents, a contract for the delivery of certain documents of importance for a case by Y to X, with the stipulation that X was to receive for it a value of 750 if the suit was compromised, and ₹3,000 if the suit was fought to a finish and decreed. It is a contingent contract, wagering contract, quasi contract, or a future contract. A contract for the delivery of certain documents of importance for a case by X to Y, with the stipulation that X was to receive for it a value of 750 if the suit was compromised, and 3,000 if the suit was fought to finish and decreed. It is a contingent contract, wagering contract, quasi contract, or a future contract. Yes, जल्दी से सही जवाब की तरफ आएंगे. Yes, everyone.
is the decision of a contract is based upon, देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शिखा आप कह रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कसक भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही प्रेजेंट टर्म में देखा जाता है, बिकॉज जिस चीज को आप फ्यूचर पे छोड़ दें, समथिंग इन विच द टर्म्स आर टू बी डिसाइडेड इन फ्यूचर, वो कभी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ठीक है। व्हेन द टर्म्स आर नॉट सर्टेन, सो वहां पे सेक्शन नंबर 29 की एप्लीकेबिलिटी होती है और एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का हमारे पास कोई प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं है। सवाल समझो, सवाल समझने के बाद जवाब देना है। लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर अ केस बाय X to Y with the stipulation that X was to receive for it a value of 750 if the suit was compromised and 3000 if the suit was fought and finished and decreed। देखो ये सिचुएशन है कि X जो है वो Y को कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करने की बात कर रहा है, ठीक है। समझते जाना, कॉन्सेप्ट समझना, फिर उसके बाद आंसर पे आएंगे। X कह रहा है कि मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको दूंगा। कंडीशन ये है, स्टिपुलेशन ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स के बदले में X को क्या मिलेगा। तो अगर Y कोई सूट कंटेस्ट कर रहा है, ऐसा समझना है, Y का कोई सूट चल रहा है, तो अगर वो Y का सूट कॉम्प्रोमाइज ड्राइव हो जाता है उस सूट में, तो X को मिलेंगे 750 रुपए, और अगर वो सूट में Y जो है वो डिग्री ले जाता है, जीत जाता है, तो X को मिलेगा 3000 रुपए। तो क्या ये सूट डिसाइड होगा, क्या ये पार्टीज के कंट्रोल में है? यस, इज इट इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज कि क्या सूट में डिग्री मिलेगी या कॉम्प्रोमाइज होगा? द आंसर इज नो, इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ Y that whether the suit is going to be compromised or whether the suit is going to be decreed in his favor। नंबर 2, यहाँ पे एक कंटिंजेंसी है, और कंटिंजेंसी आपको क्या दिख रही है? दैट इज सूट, ठीक है। जो सिविल सूट चल रहा है भाई का, वो एक कंटिंजेंसी है। क्या भाई उसमें कॉम्प्रोमाइज ड्राइव करवा पाएगा या क्या उसके फेवर में डिग्री हो जाएगा, ये एक कंटिंजेंसी है और अनसर्टेन है। एंड thereby in the given case the answer should be option number A, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, so in a contingent contract the happening of an event must be beyond the control of the parties। In the given circumstances the price of the documents made to vary according to the happening of the certain conditions। कि अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो 750, डिग्री मिला तो 3000, ये एक अनसर्टेन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड देयरबाय सच काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो मस्ट अप्लाई योर माइंड। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता। कुछ एक ने ऑप्शन नंबर सी किया कि कौसाई कॉन्ट्रैक्ट, कौसाई कॉन्ट्रैक्ट में ये कहां पे आप लेके जाते हैं? वेजरिंग में, तो वेजरिंग इट इज नॉट देयर, बिकॉज वेजरिंग में सिर्फ पार्टी विन और लूज में इंटरेस्ट लेती है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक कंटिंजेंसी साथ में चल रही है और कंटिंजेंसी के बेसिस पे ही प्राइस मिलेगा, तो हेंस इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगला सवाल, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी हैज अ कंप्लीट डिस्क्रिशन वेदर ही विल परफॉर्म और नॉट, ठीक है, वेदर ही विल परफॉर्म और नॉट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? कंटिंजेंट है, नो कॉन्ट्रैक्ट है, वेजरिंग है, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस, शालिनी ने मुझे आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी हैज अ कंप्लीट डिस्क्रिशन whether he will perform or not, so ultimately it is at the pleasure of a party, it is at the pleasure of the party। एक पार्टी के विल पे अगर पूरा का पूरा एग्रीमेंट चला जाए तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ कंटिंजेंसी या वेजरिंग की बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम आएंगे बिकॉज प्रिंसिपल जो है समझते हैं कि क्यों इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझते। लिखा है द वर्ड्स ऑफ प्रॉमिस amounts to no promise at all if their operation is expressed to be dependent in the term or effect or on the mere will or pleasure of the promise। कि कोई भी
आप अगर किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, उस प्रॉमिस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर वो पूरा का पूरा प्रपोजल प्रॉमिस आपकी विल या प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी हैज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वेदर ही विल परफॉर्म और नॉट इज नो कॉन्ट्रैक्ट। This principle may be justified on the basis of the lack of the consideration or lack of the intention to create legal relationships. तो इस आधार पे इस चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझते हैं। अगला सवाल, the next question for today, the tender of performance must be unconditional, made at proper time and place, equivocal, and must be made at a proper time and place, both A and B. Yes, what is the right answer? Question number 81. ठीक है, देखो, as far as the tender of performance is concerned, it must be unconditional and it must be made at a proper time and place. ठीक है, so over here ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी राइट आंसर। ठीक है, तनु ने डी क्या है, the other people have also stated me the answer, that is option number D। कुछ एक ए पे आ रहे हैं, लेकिन देखो जहां तक टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की बात है, सेक्शन नंबर 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, सेक्शन नंबर 37 टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है, और वहीं पे दो चीजें लिख लेना, इट मस्ट बी अनकंडीशनल एंड मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अगर आप प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे जो परफॉर्मेंस है वो टेंडर नहीं करते हैं, सो अल्टीमेटली इट इज कंसीडर्ड टू बी दैट द परफॉर्मेंस इज नॉट डन बाय द पार्टी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 82 है, एच एंड डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, हाउएवर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर मैरिज एच बिकम्स मैड। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था मैरिज का, लेकिन बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज कम्स, Mr. H becomes mad. The contract becomes void. अगला है, H's representative must compensate W. तीसरा है, the contract becomes voidable. और चौथा है, W may resign the contract and can claim compensation. Yes. Which of the following principle will be applicable? ठीक है, you people are giving me the answers. That is option number A should be there. Very good. कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड में हम इसको लेके जाते हैं सेक्शन नंबर 56 में, देयर आर सर्टेन इलस्ट्रेशन, उन्हीं इलस्ट्रेशंस के आधार पे एक सिचुएशन जो है ये बनाया गया है, एंड द राइट आंसर इज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, वेयर द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू द प्रोमिसी, इट इज कॉल्ड एज ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, presentation, or both A and B? Yes, when a promiser offers to perform his obligation under a contract to the promisee, it is called as offer of performance, tender of performance, both A and B, or presentation के। ठीक है, so as you people are giving me the answer, that is option number B, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस पे आप लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, हमारे इंडिया में जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होता है, इसी को ही इंग्लैंड में टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है। सो लेट अस कम टू दिस। इंग्लिश लॉ में ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। शिखा ने आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया, वेरी गुड। लिखा हुआ है, एन ऑफर टू परफॉर्म इज रेफर्ड टू एज टेंडर अंडर द इंग्लिश लॉ। तो आपका जो सवाल है वो सेक्शन नंबर 37 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, और सेक्शन नंबर 37 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रिंसिपल है उसमें हम जनरली लिखवाते हैं दैट इज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 37 के अंदर है, लेकिन उसी में ऑफर टू परफॉर्म जो है वो सेम मतलब जो है उसका निकलता है। ठीक है, एक व्यक्ति को आपने ऑफर भेजा, वो व्यक्ति आपके ऑफर में जो कुछ भी कंडीशन है उनको परफॉर्म करना चाहता है, ही इज ऑफरिंग दैट आई वांट टू परफॉर्म दिस कंडीशंस और व्हाटएवर इज बीइंग स्टेटेड इन द ऑफर इटसेल्फ, तो उसी को हम टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेट मी
रीड इट फर्स्ट, ठीक है। सवाल है आपका, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड स्टिपुलेटेड फॉर द delivery to K of 7,500 bags of Madras coast castor need to be shipped per streamers, and then stated that the shipment of 2,500 bags was to be made in December. 1,690 bags arrived on 10th of December, and P offered that the delivery to K was refused to take them on the ground that he was not bound to take less than the whole of 2,500 bags at one time. The bags were then resold by P. The remaining 810 bags of the December shipment arrived on 20th December, but were also refused by K on the same ground and were resold by P. P sued K for the damages of the breach of contract in not accepting the bags. There was no breach of contract on the part of K. The next one is there was an invalid tender of performance. The tender of performance was valid. P entitled to sue, and the last one is K did not receive the stipulated quantity of bags and he could rightly refuse to accept it. सवाल को मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट है कि एक के नाम के व्यक्ति को कुछ सप्लाई होना है मटेरियल, 7,500 बैग्स उसको जाने थे, ठीक है, जिसमें से उन्होंने कहा कि पर स्टीमर जो है 2,500 बैग्स जो है वो भेजे जाए, लेकिन दिसंबर के महीने में जो शिपमेंट भेजा गया उसमें 1,690 बैग जो थे वो भेजे गए, 10 दिसंबर को वो उसको मिला, और पी नाम के व्यक्ति ने ठीक है, पी ने जब उसकी डिलीवरी को कहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे को कंप्लीट क्वांटिटी जो है 2,500 बैग्स की वो एक साथ चाहिए थी। तो जब उसने उसको रिसीव नहीं किया तो पी ने उसको किसी और व्यक्ति को रीसेल कर दिया। फिर उसके बाद जब 810 बैग्स जो थे दिसंबर में जो दूसरी शिपमेंट में आए तो उसके बेसिस पे अगेन उसने उसको रिसीव करने से मना किया, जो पी ने दोबारा से किसी और को बेच दिए, और पी ने फिर के ऊपर सूट फाइल किया है, डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द बैग्स। ये पूरा का पूरा सिचुएशन है। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने आपको कुछ सामान दिया, उसने ये कहा कि मुझे इतना सामान जो है एक लॉट में चाहिए, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने वो सारा का सारा लॉट एक साथ नहीं भेजा, रेदर उसमें से कुछ एक सामान भेज दिया, कुछ आपका रह गया। तो उसने जितना सामान आपने भेजा उसको रिसीव करने से मना कर दिया, तो आपने वो किसी और को बेच दिया। फिर दोबारा से आपने जब दूसरा लॉट भेजा उसने वो भी रिसीव नहीं किया, आपने किसी और को बेच दिया, और बाद में आपने उस व्यक्ति के ऊपर केस किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कि उसने आपके द्वारा भेजे गए बैग्स जो थे वो रिसीव नहीं किए। तो इसके आधार पे हमें जो है अपना आंसर निकालना है। ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, दूसरा देयर वाज द इनवैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, तीसरा है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वाज वैलिड एंड पी इज एंटाइटल्ड टू सू के, and last one is K did not receive the stipulated quantity of bags and he could rightly refuse to accept it. ठीक है, so you people are giving me the answer that is option number B is there. ठीक है, जरा एक बार दोबारा से जो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों की स्क्रीन पे होगा ना, इसको समझना है, ध्यान से इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, डीजीएस का क्वेश्चन है ये, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, A made a contract was stipulated for the delivery to K of 7,500 bags of the posterior seed to be shipped per steamer, and then stated that shipment of 2,500 bags was to be made in December. 2,500 बैग दिसंबर के महीने में आने चाहिए। 1,690 बैग 10 दिसंबर को पहुंच गए और 810 बैग जो थे वो 20 दिसंबर को पहुंच गए। तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस थी क्या वो मीटअप हुई या नहीं हुई? यस,
यस और नो करके जवाब दे सकते हैं मेरे ख्याल से। यस एवरीवन, कैसे कह रही है सर नहीं हाउ? देखो उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि 2500 बैग्स जो हैं वो भेजेंगे, ठीक है। स्टेटेड दैट द शिपमेंट ऑफ 2500 बैग्स वाज टू बी मेड इन दिसंबर, 2500 बैग दिसंबर के महीने में भेजेंगे। 1690 बैग 10 दिसंबर को भेज दिए और 810 बैग जो बचे हुए थे वो 20 दिसंबर को भेज दिए। तो क्या ये वैलिड टेंडर नहीं है? सारे के सारे डिलीवर तो कर दिए दिसंबर में। यस, जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी दोज टर्म्स हैव बीन कंप्लाइड विद। सो ओवर हियर अपने आंसर को अब देखिए क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में समय लगा है, लेकिन अब आंसर देखिए क्या होना चाहिए। देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ के, there was an invalid tender, the tender of performance was valid and P is entitled to sue K. And last one is K did not receive the stipulated quantity of bags and he could be rightly refused to accept it. So option number C is the right answer. जो tender of performance है कि दिसंबर के महीने में बैग सारे के सारे आने चाहिए थे, वो उसने भेजे लेकिन उसने रिसीव नहीं किए, तो ultimately there was a legal and proper tender of the December shipment by P according to the terms of contract and P is entitled to sue K for the claiming of damages, ठीक है। तो ऐसे लेंदी सवाल आपके हिमाचल में या हरियाणा में, ऐसी स्टेट्स में तो नहीं पूछते हैं ज्यादा, लेकिन डीजीएस में दे यूज्ड टू आस्क सच काइंड ऑफ लेंदी क्वेश्चंस इन द एग्जाम। अगला सवाल है, as per the provisions of section number 38 of the Contract Act, the promisor is not responsible for the non performance if, सेक्शन नंबर 38 से सवाल है, प्रोमिसर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता परफॉर्मेंस करने के लिए अगर इफ द प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोमिसी इज नॉट रेडी एंड विलिंग टू पे, प्रोमिसी बिकम्स इंसॉल्वेंट और एनी ऑफ द अबव। यस, ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग आ रहे हैं, दैट इज प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। वेरी गुड। सेक्शन नंबर 37 हमारा टेंडर या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है। 38 कहता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति जो प्रोमिसर है वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं है, अगर प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इफ द प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, द प्रोमिसर इज नॉट लायबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। सेक्शन नंबर 38 का कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल, अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट from the date of default is known as, stipulation for the increased interest on the date of default is known as damages, compensation, penalty, forfeiture। कि आपने कहा कि फलानी डेट को मेरा पैसा वापस कर देना 6% ब्याज के साथ, अगर नहीं दोगे तो उसके बाद 8% ब्याज लगेगा, इसको हम क्या कहेंगे? डैमेजेस, कंपनसेशन, पेनल्टी या फोरफीचर। सो एज वी पीपल आर गिविंग मी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी देयर, इट इज द पेनल्टी। वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 74, ठीक है, 74 नॉट 73। 73 में तो डैमेजेस की बात है, 74 में स्टिपुलेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 74 प्रोवाइड्स द स्टिपुलेशन ऑफ द इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज नोन एज पेनल्टी। वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं। लीज का एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्वेश्चन है आपका, अ लेसी ऑफ अ पेट्रोल पंप had to apply for the renewal of the lease within the time fixed by the contract, ठीक है। A lessee of a petrol pump has to apply for the renewal of the lease within the time fixed by the contract। जो आपने टाइम लिखा था 1 साल 2 साल का, उसके बीच में आपको रिन्यू करवाना था। He was late by 10 days in his application for the renewal। 10 दिन के बाद वो एप्लीकेशन लगाया, थोड़ा सा डिले हो गया। The landlord refused to renew the lease। ऑप्शंस हैं, landlord cannot refuse, landlord may refuse for renewal। Option number C, landlord is bound to renew the lease as 10 days delay does not affect the right of the lessee to get the lease renewed। Or D है, time so fixed was not the essence of the contract, hence landlord cannot refuse to renew of lease। Yes, आपको आइडेंटिफाई करना क्या है, whether the time is the essence of the contract or not। Yes,
ठीक है, so Kassak is giving me the answer, that is option number B. सुरेंद्र भी B पे आ रहे हैं, that landlord may refuse for the renewal of lease because ultimately the time fixed for the renewal is given over here and the person has not applied for the renewal, so it will be at the option of the landlord now and he may refuse for the renewal. और अगर उसको लगता है कि आगे इसको allow करना चाहिए तो वो allow भी कर सकता है. ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसका explanation पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन का. In a contract of sale of land or immovable property, it would normally be presumed that the time was not the essence of the contract. जब भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं तो वहां पे टाइम इज नॉट द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर the renewal of the lease is something different from the sale of the immovable property. अब देखना आपको दो तरीके से सवाल आ सकता है. अगर आपको आता है सवाल सेल ऑफ द लैंड या सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो आपको वहां पे टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी है, बिकॉज सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेदर द अदर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. बट एज फार एज द रिन्यूअल ऑफ द लीज इज कंसर्न्ड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. The time so fixed was the essence of the contract because जो लेसर और लेसी के बीच में रिलेशनशिप होता है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एंजॉय एक पर्टिकुलर टाइम तक करने के लिए दिया जाता है. तो इसका मतलब टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ओवर हियर लैंडलॉर्ड मे रिफ्यूज टू रिन्यू द लीज इन दिस केस. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से ऐसा सवाल बन जाए तो वहां पे टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे में जो है व्यक्ति मना नहीं कर सकता. रेदर जब लीज की बात आएगी तो वहां पे टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और लैंडलॉर्ड जो है वो मना कर सकता है. अगला सवाल, द फेमस केस ऑफ हॉटस्टर वर्सेस डे ला टूर वाज रिलेटेड टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसरी एस्टॉपल और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दो लोगों ने मेरे पास आंसर दे दिया है. एंड व्हाट अबाउट अदर कैंडिडेट्स? यस, it is related with option number D, that is anticipatory breach of contract. Hotster versus De La Tour is a very landmark case over the anticipatory breach. अगला सवाल है, the repercussions of the event where the promisee refuses to accept the performance. The repercussions of the event where the promisee refuses to accept the performance. अगर promisee परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो उसका क्या मतलब होता है? डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ द प्रोमिसर, डिस्चार्ज ऑफ द प्रोमिसी, और बोथ बी एंड सी. If the promisee refuses to accept the performance, what will be the impact of that? Yes, अभी सेम इसी तरीके से सवाल आपने जो है उसका आंसर दिया भी है. What are the repercussions of the event where the promisee refuses to accept the performance? सेक्शन नंबर 38 से रिलेट करेंगे. It will discharge the promisor to go for the performance of the contract. ठीक है, so it is discharging the promisor. Option number B से आपको relate करना है, where the promisee refuses to accept the performance. शालिनी B आंसर होगा इसका, है ना? That is the discharge of the promisor, है ना? Where the promisee refuses to accept the performance, the promisor will not be treated as having performed the obligation. It discharges the promisor for non performing that obligation and it does not however discharge the contract. Contract अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन promisor जो है वो अपनी obligation से discharge हो चुका है. It gives the promisor an option to terminate the contract and to sue for the damages. So option number B is the right answer. कर सकते सही जवाब दिए, very good. अगले सवाल पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 90 है that for the purpose of section number 39 of the Contract Act 1872, a party deemed to have incapacitated himself from performing a contract when section number 39 के accordingly एक party जो है is deemed to have incapacitated himself from performing the contract when he deliberately puts it out of his power to perform the contract by he or by his own act or default arise a circumstance which render him to a neighbor. He was prevented by sufficient cause to perform the contract, or both A and B. Yes. What is the answer? Question number 90. सवाल समझ रहे हैं? सेक्शन नंबर 39 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज है और कुछ खास नहीं है. एंटिसिपेटरी ब्रीच व्यक्ति कैसे कर सकता है? या तो वो मना कर देता है तो he deliberately puts it out
of his power to perform the contract, या फिर he becomes unable to perform the contract. ठीक है, so आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, जो बोथ ए और बी की बात कर रहा है, दैट इज द राइट आंसर. सेक्शन नंबर 39 पढ़ेंगे आप लोग अपने अपने पेरेंट्स में, यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन सेक्शन. अगला सवाल है, द डॉक्ट्रिन ऑफ द एंटीसिपेटरी ब्रीच डज नॉट अप्लाइज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स. कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटीसिपेटरी ब्रीच अप्लाई नहीं होता है? completely executed on one side, promissory notes, bill of exchange और all of the above. Anticipatory breach कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा? Completely executed on one side, promissory notes, bill of exchange और all of the above. ठीक है, so as you people are giving me the answer, that is option number D. Option number D is the right answer. हमारा जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल है वो ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे अप्लाई होता है, ना वो प्रोमिसरी नोट्स पे अप्लाई होता है, और अगर एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक शर्त से पूरा कर दिया तो भी एंटीसिपेटरी ब्रीच फिर नहीं हो सकती. अगला सवाल, व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लॉ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, एंड ईदर बी और सी. यस, बहुत ही सिंपल सवाल. सेक्शन नंबर 46. यस, रीजनेबल टाइम जो है उसको हम क्या समझते हैं? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, और बी और सी में से कोई भी. सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. वेरी गुड. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं. The question is, where a party to a contract commits an anticipatory breach, the other party to a contract may avail the following remedies. अगर एक व्यक्ति एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेक्शन नंबर 39 अप्लाई आप लोग करेंगे, तो ऑपोजिट पार्टी के पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती है? ट्रीट द ब्रीच एज पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड आस्क फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ट्रीट द ब्रीच एज पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर द डैमेजेस. Wait till the expiry of the term of the contract and bring them for the specific performance. Yes, ठीक है. सो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग आ रहे हैं, that is all of the above should be there. लेकिन मैं 2-3 लोगों का आंसर भी वेट करूंगा. So everyone is giving me the answer, that is option number D, that is all of the above. लेकिन ऊपर सवाल को ध्यान से पढ़ें, सवाल को ध्यान से पढ़ें. वैसे तो एंटीसिपेटरी ब्रीच से ही तीनों चीजें रिलेट करती हैं, लेकिन सवाल जो पूछा जा रहा है उससे थोड़ा सा समझने में मुझे लग रहा है अभी दिक्कत है. Try to understand the question. I will give you 2 minutes. Try to understand. इधर में अपना आंसर बदला है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी पे वो आ रहे हैं. ठीक है, सभी लोग अभी बी पे आ रहे हैं. दैट इज द रेमेडी इज टू ट्रीट द ब्रीच एज पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर द डैमेज. दिस इज द बेसिक रेमेडी व्हिच योर पीपल आर सेइंग इट इज अवेलेबल. And the other things, that is treat the breach as putting an end to the contract, ask for the specific performance or wait till the expiry of the contract etc. इसकी जहां तक बात है, देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर आप सूट करना चाहते हो तो आप इमीडिएटली जिस दिन उस व्यक्ति ने ब्रीच किया था उस दिन ये रेमेडी अवेल ना कर पाओ, बिकॉज उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है. सो ऑप्शन नंबर बी जो आपने बाद में सोच समझ के जवाब दिया है वो सही है. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जो था वो नहीं होना था. एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ सो दैट आपको क्लेरिफिकेशन साथ में मिले. It is saying that where the party to a contract commits an anticipatory breach of the contract, the other party to a contract may treat
the breach as putting an end to the contract and sue for the damages, but in that event he cannot ask specific performance, क्योंकि एंटिसिपेटरी ब्रीच है ना, डेट ऑफ परफॉर्मेंस तो अभी तक आया ही नहीं, तो जब तक डेट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आया अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। द अदर ऑप्शन to the aggrieved party is that he may choose to keep the contract alive till the date of performance arrives and then claim the specific performance, and in that event though he need not to tender his performance according to the terms, he cannot claim specific performance of the contract unless he shows that he is ready and willing to perform the contract। मतलब इसका ये है कि अगर वो व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहता है तो उसे पहले ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो उसके हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट था, वो रेडी और विलिंग है उसको परफॉर्म करने के लिए। द पार्टी ऑप्टिंग टू सीक द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नीड नॉट टू वेट till the expiry of the contract, term of the contract, and bring the suit for specific performance immediately on the occurrence of the anticipatory breach। तो ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, ठीक है। अब इसी में हमें अपने ऑप्शंस को अगर हम एक बार ध्यान से पढ़ें तो लिखा है ट्रीट द ब्रीच एज पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, आस्क फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वेट टिल द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग द क्लेम फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो दीज रेमेडीज आर available on the future date, but the moment there is the anticipatory breach, the person is going to treat the breach as putting the end to the contract and he can sue for the damages। So option number B is the right answer over here। अगले सवाल पे आते हैं। The question is section number 41 of the Indian Contract Act 1872 applies to the cases of assignment, subrogation, novation or all of the above। section number 41 याद करो किस चीज की बात करता है। 41 ठीक है। So I'm getting the answer from Shalini, that is option number A should be there, that is the concept of assignment। देखो जहां तक सेक्शन नंबर 41 कॉन्ट्रैक्ट की बात है, it generally relates to the process of assignment, it is not the process of subrogation। ठीक है, subrogation का प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है, वो अगले सेक्शन है, सेक्शन नंबर 42 ऑनवर्ड्स। 41 के अंदर असाइनमेंट का प्रिंसिपल है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। that a promisee cannot have a double satisfaction of his claim from the promiser as well as from the third party। कि एक व्यक्ति ने अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो अपने कॉन्ट्रैक्ट की सेटिस्फेक्शन जो है वो एक ही व्यक्ति से करवाएगा, या तो प्रोमिसर से या किसी थर्ड व्यक्ति से। सेक्शन 41 gives a cause of action to the promiser to contend the promisee who has accepted satisfaction from the third party cannot insist on the satisfaction of its claim from the promiser as well। तो अगर तीसरी पार्टी से आपने अपने आप को सेटिस्फाई करवा लिया है, सो आप प्रोमिसर को उसके बाद नहीं कहोगे। तो it is ultimately section 41 is relating to the concept of the assignment but not to the process of subrogation। subrogation होता है कि जैसे मान लीजिए one person is given loan to the other, तो उसके लोन की रीपेमेंट वो व्यक्ति जिसने लोन लिया था वो ना करते हुए कोई तीसरा करता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनमेंट। ये सेक्शन नंबर 41 के अंदर है। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच में जो कुछ भी रिलेशन होगा, मतलब कि प्रोमिसी और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी रिलेशन होगा, वहां पे सब्रोगेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन नंबर 42 को याद अगर करेंगे तो बड़ा इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। एबीसी जॉइंटली प्रोमिसेस टू पे डी सम ऑफ ₹3000। एबीसी ने जॉइंट प्रॉमिस किया 3000 रुपए देना है। सी इज कंपेल्ड टू पे द होल, सारा का सारा पैसा सी ने दिया। A becomes insolvent, but his assets are sufficient to pay 1/2 of his debts. So C is entitled to receive 1500 from B, 1000 from his representatives of A, and 1000 from B. C is entitled to receive 500 from A's estate and 1250 from B, and C is entitled to entire amount of 3000 alone, and he cannot he's bound to pay the entire amount and he's not entitled to recover it from A and B। yes, section number 42 illustrations very important। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग आ रहे हैं। देखो 3000 रुपए की बात है,
चलो मैं यहाँ पे छोटा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए, बी और सी तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस किया डी को कि हम लोग आपको 3000 रुपए देंगे, ठीक है। अब सारा का सारा पैसा सी ने दे दिया, ठीक है। सो क्योंकि जॉइंट प्रॉमिस है, डिवोल्यूशन ऑफ लाइबिलिटीज की बात आती है। ए जो था वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन ए की एसेट्स हाफ ऑफ हिज डेट दे सकते हैं, तो इसका मतलब तीनों की लाइबिलिटी वैसे तो 1000 रुपए की थी, लेकिन क्योंकि ए इंसॉल्वेंट है और उसके एसेट्स बेच के 500 रुपए रिकवर हो सकते हैं, तो हम ए से 500 ही लेंगे, ठीक है। तो देखो सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1000 रुपए की, और ए और बी की भी 1000 रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन क्योंकि ए जो है वो इंसॉल्वेंट है, तो उसके एसेट्स बेच के सिर्फ 500 रुपए रिकवर हो रहे हैं, तो बाकी का 2500 रुपया सी और बी से हम रिकवर करेंगे। तो 2500 में मतलब 1250 एक व्यक्ति का, 1250 दूसरे का। सो ओवर हियर ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है, सी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 500 फ्रॉम एज एस्टेट एंड 1250 फ्रॉम बी, सो इट इज द राइट आंसर। आप लोगों ने मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी ही मार्क किया था, वेरी गुड, ठीक है। जो ए की एस्टेट से जो पैसा आ सकता है वो हम ले लेंगे, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 42, 43 के अंदर ना बहुत सारे इलस्ट्रेशंस रखे गए हैं, उनको एक बार जरूर गो थ्रू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, What would be the effect of a release of any of the joint promisers by the promisee? अगर joint promisers थे, एक से ज्यादा promisers थे और promisee किसी एक को रिलीज कर देता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? The other joint promisers do not release or discharge. Such released promisers are not liable to contribute. Such released promisers are liable to contribute, or both A and C. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। What would be the effect of a release of any of the joint promiser by the promisee? अगर promiser को रिलीज किया गया है पेमेंट से प्रोमिसी के द्वारा, तो उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो होगा? Will the other joint promisers do not going to release or discharge? Such release promisers are not liable to contribute. Such release promisers are liable to contribute, or both A and C. So I'm not getting the correct answer to this question. ठीक है, शिखा ने आंसर दिया, that is option number D. Very good. Option number D is the right answer. The effect of the release of any of the joint promiser by the promisee does not release or discharge the other joint promisers, nor does it affect the right of the others to claim or contribute from the joint promiser so released. तो अगर प्रोमिसी ने किसी व्यक्ति को रिलीज किया है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकियों को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। द अदर पर्सन इज स्टिल बाउंड टू कंट्रीब्यूट द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स, ठीक है। सो वो सारा जो सिचुएशन है वो साथ में कवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगेन थोड़ा सा लेंदी है, लेट मी रीड द क्वेश्चन। लिखा है, एक्स एंगेज्ड वाई एज हिज कुरियर ऑन अ कॉन्टिनेंटल टूर फ्रॉम 1 जून फॉर 3 months at GPP 10 a month. Before a scheduled day, X changed his mind and wrote to Y that the services were not wanted. Y immediately before 1 June sued X for the breach of contract. X contended that Y should have waited till 1st of June before bringing his action, as the contract could not be considered as broken till then. सवाल समझिए पहले क्या कह रहा है। एक X नाम के व्यक्ति को X ने Y को एंगेज किया एज अ कुरियर फॉर अ टूर फ्रॉम 1 जून। तो 1st of June से एक व्यक्ति ने दूसरे को अपना जो कुरियर समझ लो या उसको लेके जाना था उसने, ठीक है। 3 month का टूर था, लेकिन शेड्यूल्ड डे मतलब कि 1 जून से पहले ही एक्स ने अपना मन बदल लिया और वाई को उसने लिख के दे दिया कि मुझे आपकी सर्विसेज अभी नहीं चाहिए। तो वाई ने 1 जून से पहले ही एक्स के ऊपर केस कर दिया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वाई कंटेंशन रेज करता है कि 1 जून तक मेरा मन बदल सकता था, तो इसके पास अभी कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। तो ये पूरा सिचुएशन है। ऑप्शंस आर द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन ब्रोकन, हेंस एक्स वाज नॉट लायबल, X contention was tenable and Y should have waited till 1st of June.
The contract has been broken by express renunciation, and the last one is it was a mere intention to break the contract and not the actual renunciation. इनमें से सही आंसर जो है वो आप लोगों को दूंगा. ठीक है, I'm getting the answer from Shalini, that is option number C, that contract has been broken by the express renunciation. कसक भी C पे आ रही है. शिखा आप A कह रहे हैं that contract has not been broken, hence X was not liable. Anticipatory breach का concept apply हो जाएगा कि before the date of performance X ने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको तोड़ा है और Y को 1 जून तक वेट करने की जरूरत नहीं है. वो जैसे ही एक्सप्रेस रिनंसिएशन हुआ वहां पे he can go for the filing of the suit for claiming the damages. Anticipatory breach का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे and thereby we will get the answer. ऑप्शन एक्सप्लेनेशन इसका कह रहा है that X contention was not tenable. जो उसने कोर्ट के सामने कहा कि सर अभी 1 जून तो आया ही नहीं, वो टेनेबल नहीं है, वो नहीं सस्टेन करेगा as the contract has been broken by the express renunciation and the plaintiff was not bound to wait until the date of performance arrives. तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो वेट करे. सेक्शन नंबर 39 का प्रिंसिपल जो है वो साथ में अप्लाई होता है. अगला सवाल, which of the following provisions of the Indian Contract Act deals with the devolution of joint liabilities and joint rights? डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज एंड जॉइंट राइट्स को लेके कौन से दो सेक्शंस बात करते हैं? 41 एंड 45, 42 एंड 45, 42, 46 एंड 41 एंड 44. ठीक है, सुरेंद्र हैज गिवन मी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. कसर कह रही है सेक्शन नंबर 45 और 42 दोनों से आपको रिलेट करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज एज फार एज द जॉइंट लाइबिलिटीज एंड जॉइंट राइट्स आर कंसर्न, इट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 42 एंड सेक्शन नंबर 45. 42 के अंदर डिवोल्यूशन ऑफ द जॉइंट लाइबिलिटीज की बात है और 45 के अंदर डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स की बात है. वेरी गुड. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 47 of Indian Contract Act applies only when the certain day is fixed for the performance, certain place is fixed for the performance, promisor is to perform on the application by the promisee, or either A or B or C. सेक्शन नंबर 47 जो है वो किन सिचुएशंस पे अप्लाई करता है, कब अप्लाई करता है? यस, बड़ा ही ऑफ बीट एरिया ये कॉन्ट्रैक्ट का 47 से लेके 50 तक, लेकिन फिर भी वी मस्ट हैव टू रिकलेक्ट व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड इन द बेयर एक्ट. डायरेक्ट बेयर एक्ट से रिलेट कर रहा है आपका सवाल, लेकिन आंसर गलत आ रहे हैं. सेक्शन नंबर 47 जो है it talks about when a certain day is fixed for the performance. Certain day is fixed for the performance. 47, 48, 49 को एक बार अच्छे से go through करना है. डे की बात अलग है, डेट की बात अलग है, प्लेस की बात अलग से मेंशन की जाएगी. तो 47 इज द राइट आंसर ओवर हियर. ऑप्शन नंबर ए जो है वो बात करते हैं with a certain day is fixed for the performance. अगला सवाल, where the parties to the contract agree to substitute the existing contract for a new contract. एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, इसको हम क्या कहेंगे? रिसेशन, ऑल्टरेशन, सब्स्टिट्यूशन और नोवेशन. सो सुरेंद्र, शालिनी, कसक, सभी लोगों ने जवाब मेरे पास दिया. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. इट इज टू बी कॉल्ड एज द कांसेप्ट ऑफ नोवेशन. वेरी गुड. अगले पे आते हैं. ठीक है, नोवेशन कहां पे है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर? यस, इन विच सेक्शन द कांसेप्ट ऑफ नोवेशन इज बीइंग गिवन? सेक्शन नंबर 62. वेरी गुड. अगला सवाल है, which provision of the Contract Act embodies the principle of discharge of contract by accord and satisfaction? Which provision of the Contract Act embodies the principle of discharge of contract by accord and satisfaction? 62, 63, 68 or none of the above? 62 में नहीं है, 63 में शालिनी आंसर दे रही है. ऑप्शन नंबर सेक्शन नंबर 63 इज द राइट आंसर. डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन. अगर पार्टीज म्यूचुअली सैटिस्फाइड हो जाती हैं टर्म्स और कंडीशंस को परफॉर्म करते हुए, सो इट विल बी कंसीडर्ड टू बी द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन नंबर 63 लिखा हुआ है दैट सेक्शन 63 embodies the principle of discharge of contract by accord and satisfaction, that is accepting some other thing
Insatisfaction instead of the actual performance is called as the principle of accord and satisfaction under the English law. कि मान लो आपने एक प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हुई, पार्टीज ने म्यूचुअली कहा कि फलानी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन उसके बदले में कुछ और ले लो, सेटिस्फेक्शन है पार्टीज की, सो इट विल बी डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। इंग्लिश लॉ में ये प्रिंसिपल रखा गया है और इंडिया में इसको सेक्शन नंबर 63 के अंदर इंश्राइन करके रखा जाता है। सेक्शन नंबर 63 अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन के प्रिंसिपल पे आधारित है। अगला सवाल, बस आई बिलीव 10 मोर क्वेश्चंस आर देयर फॉर टुडे। Where the party to a contract who has promised to do certain thing at a specified time fails to do it before that time, though the intention of the party was that time should be the essence of the contract, such failure on the part of the promiser makes the contract। ठीक है, दोबारा से पढ़ रहा हूं। एक पार्टी ने स्पेसिफिक टाइम पे कुछ नहीं किया और पार्टीज की इंटेंशन थी कि टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और फेलियर टू ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोमिसर विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट void, not voidable, but the promiser may claim compensation for the non-performance, voidable, or it is illegal। Where the time is the essence of the contract, what is the impact over the agreement? Yes, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, voidable होगा या क्या होगा? 55 पैरा 1 सुरेंद्र कह रहे हैं, ठीक है। बाकी शालिनी सिंह इट इज अ void contract, void agreement, sorry। Shikha is giving me the answer, that is option number C, it is voidable। ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 55 के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया है, व्हेन द टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। कॉपीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, लिखा भी होगा, उसको पढ़ लेना। where the intention of the parties was that the time should be the essence of the contract and promiser fails to perform any at before the specified time, such failure makes the contract voidable at the option of the promisee। तो voidable है ये कॉन्ट्रैक्ट और promisee के ऑप्शन पे। अगला सवाल, the absolute contract theory was evolved in the case of absolute contract theory was evolved in the case of Paradigm versus Jean, Taylor versus Caldwell, National Carriers Limited versus Panalpina Nadran Limited, and Graves versus Cohen। Yes, absolute contract। चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि एक केस हुआ था जिस केस में एक व्यक्ति ने कुछ एक प्रॉपर्टी किराए पे ली थी। सुनते जाना, फिर मेरे ख्याल से आंसर तक पहुंच जाओगे। एक व्यक्ति ने कुछ एक प्रॉपर्टीज किराए पे ली एक कंट्री में जाके, लेकिन वहां पे जंग छिड़ गई और उस एरिया को कैप्चर कर लिया गया आर्मी के द्वारा, और वहां पे जो टेनेंट्स वगैरह थे वो वहां से निकाल दिए, या जो भी लोग थे उनको वहां से निकाल दिया। और जब जो आपका वॉर था, जब वो खत्म हुआ, तो जब लोग वापस आए रहने, तो मकान मालिक ने टेनेंट से किराया मांग लिया, कहा कि भैया किराया दो। तो उसने कहा कि सर आर्मी ने सारा एरिया कैप्चर किया था तो हम लायबल नहीं है, लेकिन वहां पे कोर्ट ने कह दिया, 1600 का के ईरा का ये केस है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाउंड हो पे करने के। तो सुरेंद्र ने जवाब मेरे पास दिया है, दैट इज पैराडाइम वर्सेस जीन। वेरी गुड, ठीक है। टेलर वर्सेस कार्डवेल ऑन सम अदर थ्योरी। पैराडाइम वर्सेस जीन के अंदर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल आ गया, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ आज के टाइम पे। इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आती है जो ये कहती है कि अगर फ्रस्ट्रेशन के कारण से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है बाद में, तो पार्टीज आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट। ठीक है, पैराडाइम वर्सेस जीन इज अ केस ऑन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉमन लॉ का प्रिंसिपल था, कॉमन लॉ की कोर्ट ने इंग्लैंड में ये केस डिसाइड किया था। अगला सवाल, द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ हॉवेल वर्सेस कॉपलैंड, टेलर वर्सेस कार्डवेल, मॉसेस वर्सेस मैकफार्लैंड एंड फोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस आर्मस्ट्रांग। यस, किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम? ठीक है,
So it is शालिनी ने आंसर दिया टेलर वर्सेस कार्डवेल. ठीक है, टेलर वर्सेस कार्डवेल इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये जो आपका मॉसेस वर्सेस मैकफर्लिन का केस है ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित है, लेकिन टेलर वर्सेस कार्डवेल का केस जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड है. अगला सवाल, The cases which is or are not covered by the doctrine of frustration, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से कवर नहीं की जाती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, नॉन अकरेंस ऑफ द कंटेम्पलेटेड इवेंट, सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन और ऑल ऑफ द. इनमें से कौन सी चीज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कवर नहीं होती है? ठीक है, you people are giving me the answer, that is option number C, self induced frustration, because it is at the option of the party. So वहां से doctrine of frustration apply नहीं हो सकती. Doctrine of frustration supervening events, subsequent impossibilities beyond the control of the party की जब बात आती है वहां पे apply होता है. तो option number C is the very right answer. ठीक है, something the event which is in the control of the party वहां पे frustration का doctrine apply नहीं होता. अगला सवाल, which of the following event would lead to frustration of the contract? Disappointed expectations, commercial hardship or difficulty, an event which was or ought to have been foreseen by the parties, or none of the above. ठीक है, कसक ने आंसर दिया, that is option number D. Which of the following event would lead to frustration of the contract? इनमें से डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई वास्ता नहीं है, कमर्शियल हार्डशिप और डिफिकल्टी से भी कोई वास्ता नहीं है, फोर्सीन इवेंट जो पार्टीज को पहले से भी पता था इससे भी फ्रस्ट्रेशन की डॉक्ट्रिन का कोई वास्ता नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. लिखा हुआ है दैट कमर्शियल हार्डशिप मे मेक अ परफॉर्मेंस नॉन प्रॉफिटेबल एंड मोर एक्सपेंसिव बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सक्यूज द परफॉर्मेंस. ठीक है, कि कमर्शियल हार्डशिप का मतलब आपको शायद उससे कोई नुकसान ज्यादा हो सकता है, आपको चीज महंगी खरीदनी पड़ सकती है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस से कोई एक्सक्यूज नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा. सो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं हो सकती. अगला सवाल, पैरा नंबर 2 ऑफ सेक्शन 56 embraces how many type of impossibilities? कितनी तरह की इम्पॉसिबिलिटीज की बात करता है सेक्शन 56 पैरा 2? यस, 3, 4, 5 या कोई भी नहीं. Yes, Shikha, Tanu, Surinder, Kasak, Shalini, and every other person. Yes, 3 की बात कर रहे हैं. That is physical impossibility, practical impossibility, legal impossibility. कुछ और भी होती है तो वो भी बता दो. Yes, these are 3 kind of impossibilities. शिखा जी 4 कहाँ हैं? शालिनी जी 4 कहाँ हैं? 3 type of impossibilities. That is physical, प्रैक्टिकल एंड लीगल इम्पॉसिबिलिटी. सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीरम बांगर. ठीक है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीरम बांगर का केस है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हमें इंग्लैंड का लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे इंडिया में सेक्शन 56 पैरा 2 फ्रस्ट्रेशन की डॉक्ट्रिन के ऊपर एक कंप्लीट लॉ है और वो तीनों तरह की डॉक्ट्रिन इम्पॉसिबिलिटीज की बात करता है. ठीक है, अगला सवाल, just yeah, so next question is, where the event leading to a frustration of the contract is relatable to an express or implied clause in a contract, it is governed by. Where an event leading to a frustration of a contract is relatable to an express or implied clause in the contract is governed by which of the following section? टेक्निकल सवाल आ गया. ट्वेंटी 29 में कहां जा रहे हो? तो अनसर्टेनिटी की बात करता है ना, when the terms of the agreement are not certain or not capable of being made certain, तो वहां पे agreement void हो जाता है. तो उसकी बात. सवाल है, where the event leading to a frustration of a contract is relatable
to an express or implied clause in a contract. कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया कि ये अगर ऐसा कोई इवेंट आया तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कर जाएगा, एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसी चीज लिख दी है। ये कहां पे लिखा है? 36 32 में किसने जवाब दिया है? कसक ने। हाँ, कसक। सेक्शन नंबर 32 इज द वेरी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग आएंगे। ऑप्शन नंबर बी में एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका जो है वो पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को कुछ पेरेक्ट में ऐड ऑन करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं। just yeah, so where the event leading to a frustration is relatable to an express or implied clause of the contract, it is governed by section 32, and if it occurs d ors of the contract, it is to be dealt with the rule of a positive law under 56। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही फ्रस्ट्रेशन वाली चीज आपने मेंशन की हुई है कि अगर ये चीज हो जाएगी, एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली आपने मेंशन कर दिया कि अगर ये फलानी चीज हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो रहेगा, ये वॉइड हो जाएगा। तो ये 32 में मतलब अगर कोई इनसाइड फोर्स अप्लाई करके आप कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट करवा रहे हैं, मतलब आप खुद क्लियर कर रहे हैं कि इन कारणों से कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रस्ट्रेट हो सकता है, तो वो 32 में है। और अगर आउटसाइड फोर्स मतलब सुपरविनिंग इवेंट के आने से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं हो पाता, तो वो 56 में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन सेक्शन 32 एंड 56 इज द कॉन्ट्रैक्ट इज डिसॉल्व्ड अंडर इट्स ओन फोर्स अंडर सेक्शन 32। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आपने टर्म्स डाल दी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं होगा, तो वो आ जाएगा 32 के अंदर। आउटसाइड फोर्स की अगर बात आएगी तो 56 जो है, सेक्शन नंबर 56 वो उन चीजों को कवर करेगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही डिफिकल्ट मुझे लग रहा है आज सवाल आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगला सवाल, क्लेटॉन्स रूल which was propounded by Devens versus Noble is related to quasi contract, promissory estoppel, appropriation of payment or determination of damages। क्लेटॉन्स केस डायरेक्ट उठाओगे तो मिलेगा, कहां लिखवाया था? 59 में क्लेटॉन्स रूल लिखवाया है। वहीं पे एक और चीज अगर लिखना है तो लिख लो केस का नाम, इट इज डेवेंस वर्सेस नोबल का ये केस था जिसमें क्लेटॉन रूल दिया गया जो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने एक व्यक्ति को एक से ज्यादा कर्जा दे रखा है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, और वो व्यक्ति आपको 100 रुपया जमा करवा देता है, तो जो पहले आया था आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर वो पेमेंट करता है तो सेकंड वाला एडजस्ट करेंगे। दैट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के जो रूल्स हैं 59 से लेके 61 तक के एरिया में, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्लेटन रूल्स वाज गिवन इन डेवेंस वर्सेस नोबल का केस है 1816 का। ठीक है, चलिए, सो इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। वैसे अब ये हमारा सेक्शन नंबर 75 तक का जो एरिया है वो लगभग हमारा कवर हो चुका है। अब ये जर्नली मैंने कुछ एक और सवाल बना के रखे हैं जो हमारा आगे का एरिया बेलमेंट प्लेज एजेंसी। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोगों ने वो अगर पढ़ा नहीं है, देयर इज नो सच इशू, मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन पे आज अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, सो बाय दैट आप इसको एक बार फॉलो अप कर लेना। 10-12 सवाल और हैं। एक सवाल जिसमें से मैं अभी टेकअप कर रहा हूँ, सेलेक्ट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट फॉल्स, मतलब सही स्टेटमेंट आप लोगों को निकालना है। A minor may be an agent. No consideration is necessary for creation of agency. Every agent is a fiduciary relationship vice versa his principal. इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही? 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3 और all of them? Yes. एजेंसी के रिलेशनशिप को लेके ये सवाल है। सो लेट मी कम टू द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो, जहां तक एजेंसी की बात है, एक माइनर किसी भी व्यक्ति का एजेंट हो सकता है। माइनर को एजेंसी के रिलेशनशिप में आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। दूसरा, एजेंसी के रिलेशनशिप में, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो लिखा है दैट एवरी एजेंट इज इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाइस वर्सा हिज प्रिंसिपल, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत रहेगा। द रीजन इज where X appoints Y to be his agent merely to sign a memorandum and places no particular trust in him, it cannot be said there is a fiduciary relationship between them। तो अगर एक व्यक्ति ने दूसरे को सिर्फ साइन या किसी एक काम के लिए रखा है
तो वहां पे दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं दिखता और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जो है दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो यहाँ पे पहली दो स्टेटमेंट्स जो थी वो ठीक है, बाकी तीसरी स्टेटमेंट गलत रहेगी। सो इसके साथ साथ ये आगे का एरिया वही है, बेलमेंट प्लेज में से कुछ एक सवाल है, 10-12 सवाल वहां से उठाए गए हैं। सो बाय दिस वी आर क्लोजिंग द सेशन फॉर टुडे।